السلام علیکم ناظرین، تلنگانہ ایکسپریس میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں ناز مرزا۔ نیوز کی شروعات کریں گے ہیڈ لائن سے۔ 1 کروڑ خواتین کو کروڑ پتی بنانے کے عزم کے ساتھ حکومت کا کام۔ وی ہیو ویمن ایکسلریشن پروگرام سے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کا خطاب۔ ریاستی حکومت کسانوں کی سہولت کے مقصد سے بھوبھارتی قانون کو کروایا متعارف۔ ضلع میدک میں بھوبھارتی قانون پر منعقدہ سیمینار سے ریاستی وزیر پی سرینواس ریڈی کا خطاب۔ ریاستی وزیر جوپلی کرشنا راؤ نے کھیلوں کی مشعل جلا کر مس ورلڈ 2025 کا کیا افتتاح۔ دنیا بھر سے آئی ہوئی مس ورلڈ کی حسیناؤں نے خوبصورتی کے ساتھ کھیلوں میں اپنی صلاحیتوں کا کیا مظاہرہ۔ ضعیف افراد کے لیے تلنگانہ حکومت نے ڈے کیئر سینٹرز قائم کرنے کا کیا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی منظوری کے بعد ریاستی وزیر سیتکا نے متعلق فائل پر کیے دستخط۔ آر ٹی آئی کمیشن میں بی سی طبقات کے ساتھ ناانصافی۔ راجیہ سبھا رکن و آل انڈیا بی سی ویلفیئر ایسوسی ایشن کے صدر آر کرشنیا کی کانگریس حکومت پر شدید تنقید۔ مس ورلڈ مقابلے میں حصہ لینے کے لیے حیدرآباد میں موجود حسیناؤں کا مختلف مقامات کا دورہ۔ مس ورلڈ کی حسینائیں اتوار کو تلنگانہ کمانڈ کنٹرول سینٹر کا کریں گی دورہ۔ ٹینک بانڈ پر سنڈے فنڈے پروگرام میں لیں گی حصہ۔ ہندوستان کی مخالفت کرنے والے ممالک کی معیشت کو مضبوط نہ کرے۔ جے پوریا انسٹی ٹیوٹ آف مینجمنٹ کے سالانہ کمیونیکیشن سے نائب صدر دھنکر کا خطاب۔ امریکی سپریم کورٹ نے ٹرمپ انتظامیہ کو پناہ گزینوں کی ملک بدری سے روک دیا۔ ٹرمپ انتظامیہ نے 5 لاکھ سے زائد تارکین وطن کی قانونی حیثیت ختم کرتے ہوئے انہیں ملک چھوڑنے کا کیا تھا اعلان۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے وی ہیو ویمن ایکسلریشن پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خواتین کی طاقت ہی ملک کی بنیاد ہے اور کانگریس پارٹی نے ہمیشہ اس کی حقیقت کو تسلیم کیا ہے۔ انہوں نے تاریخی تناظر میں کہا کہ جب ہند چین جنگ ہوئی، جب 1971 میں پاکستان سے جنگ ہوئی، اس وقت اندرا گاندھی جی نے دنیا کو خواتین کی طاقت کا احساس دلایا۔ ملک کو فتح دلانے والی طاقت خواتین کی تھی۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ کانگریس پارٹی نے کبھی خواتین کی صلاحیت کمتر نہیں سمجھا بلکہ ہمیشہ اسے نکھارنے کے لیے کام کیا۔ انہوں نے کہا کہ خواتین ملک کے لیے مثالی ہے اور اس حقیقت کو ثابت کرنے کا سہرا کانگریس کو جاتا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ریاستی حکومت 1 کروڑ خواتین کو کروڑ پتی بنانے کے عزم کے ساتھ کام کر رہی ہے اور اس کے لیے مختلف سطحوں پر خواتین کو بااختیار بنایا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے ان کی حکومت کی خواتین دوست پالیسیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا، مہالکشمی اسکیم کے تحت آر ٹی سی بسوں میں خواتین کو مفت سفر کی سہولت دی گئی، جو سونیا گاندھی کا تحفہ ہے۔ اماں آدرش پاٹھ شالہ کے ذریعے سرکاری اسکولوں کی نگہداشت لڑکیوں کے سپرد کی گئی۔ طلباء کی یونیفارم کی سلائی خواتین کی تنظیموں کو سونپی گئی، جس سے انہیں روزگار ملا۔ پیٹرول پمپ اور سولار انرجی جیسے کام میں بھی خواتین کو آگے لایا جا رہا ہے۔ شلپا رامم میں خواتین کی مصنوعات کی نمائش کے لیے خصوصی اسٹالز مختص کیے گئے ہیں۔ ریونت ریڈی نے زور دے کر کہا کہ خواتین کے سیلف ہیلپ گروپ ریاست کی معیشت کا ستون بن رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ سیلف ہیلپ گروپس کی رکنیت 1 کروڑ تک پہنچے۔ ان گروپس کو 1000 میگا واٹ کے سولار منصوبے پہلے ہی دیے جا چکے ہیں۔ اگر بہتر طریقے سے چلائے جائیں تو مزید 1000 میگا واٹ کے پروجیکٹس دینے حکومت تیار ہے۔ ان گروپوں کی مصنوعات ریاست میں آنے والے مہمانوں کو تحفے میں دی جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے بینک قرضوں کے سلسلے میں کہا، جب 16 لاکھ کروڑ روپے کارپوریٹ کمپنیوں کو قرض دیے گئے وہ ملک چھوڑ گئے، لیکن جب بیٹیوں کو قرض دیا گیا تو انہوں نے نہ صرف قرض واپس کیا بلکہ سود سمیت لوٹایا۔
मालियाती नज़्म व ज़ब्त हमारी बेटियों की पहचान है। रेवंत रेड्डी ने अहदेदारों को हिदायत दी कि शहरी इलाकों में रहने वाली खवातीन को सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ने खुसूसी मुहिम चलाई जाए। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि आपके भाई के तौर पर मैं आपको हर मुमकिन ताउन दूंगा। उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत की पॉलिसी है कि हमारी बेटियों को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि जब बेटियां खुददार होंगी तभी रियासत की मैशियत तरक्की करेगी। ఇవన్నీ కూడా ఆడబిడ్డలను ఈరోజు ప్రోత్సహించడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రయత్నం చేస్తుంది. వచ్చే ఎన్నికల్లో మీ ఓట్లతోనే మళ్ళీ ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని మా పార్టీ మా ప్రభుత్వం అనుకుంటుంది. ప్రతి ఆడబిడ్డను 1 కోటి మందిని ఇందులో సభ్యులుగా చేర్చి ఆ 1 కోటి ఓట్లతోనే రెండోసారి ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసి మిమ్మల్ని 1 కోటి మందిని కోటీశ్వరులను చేసే బాధ్యత తీసుకుంటామని తెలియజేస్తూ మీ అందరి దగ్గర సెలవు తీసుకుంటున్నా. ఇవన్నీ కూడా ఆడ मेदक जिले के चलीपेचट मंडल में शिलमपल्ली रैतु वेदिका में भूभारती कानून पर एक बेदारी सेमिनार का इनेकाद किया गया। इस मौके पर रियासती वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और सेमिनार से खिताब किया। इस दौरान रियासती वजीर ने सेमिनार में शरीक किसानों से इनकी ज़मीन के मसाइल के बारे में दरियाफ्त किया। कई किसानों ने अपने मसाइल वजीर की तवज्जो में लाए। इसका जवाब देते हुए वजीर ने कहा कि किसानों के लिए आपकी हुकूमत है। रियासती हुकूमत ने किसानों की सहूलत की खातिर भू भारती कानून मुतारुफ कराया है। रियासती वजीर ने कहा कि किसानों को मायूस नहीं होना चाहिए। ये हुकूमत हमेशा किसानों की हिमायत करेगी और भू भारती एक्ट रेवेन्यू कॉन्फ्रेंसों के जरिए बहुत से मसाइल हल हुए हैं। इस मौके पर जिला कलेक्टर राहुल राज ने भी खिताब करते हुए कहा कि जिला मेदक में चली पेचट मंडल को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर मुंतखब किया गया और रेवेन्यू कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया और तमाम दरख्वास्तें जमा की गई है। उन्होंने कहा कि 2 जून से हर मंडल और हर गाँव में रेवेन्यू कॉन्फ्रेंसों का इनेकाद किया जाएगा और तहसीलदार की क़यादत में टीम रेवेन्यू कॉन्फ्रेंसों में वहाँ के मसाइल हल करने के इक़दाम करेगी। इस मौके पर मेदक पार्लियामेंट के रुकन रघुनंदन राव, नरसापुर बीआरएस रुकन असम्बली सुनीता लक्ष्मा रेड्डी ने भी खिताब किया। प्रोग्राम में रुकन कानून साज कौंसिल अंजी रेड्डी, जिला एसपी उदय कुमार रेड्डी, लाइब्रेरी ऑर्गेनाइजेशन चेयरमैन सुहासनी रेड्डी, आरडीओ, तहसीलदार और दीगर ने शिरकत की। वजीर जुपल्ली कृष्णा राव ने गच्चीबोली स्टेडियम में एक मुनफरिद और अलामती अंदाज में मिस वर्ल्ड 2025 मुकाबलों का बाकायदा आगाज़ खेलों की मशाल रोशन करके किया। ये मशाल न सिर्फ आलमी मुकाबले के आगाज़ की अलामत बनी बल्कि इत्तेहाद, ताकत और आलमी हम आहंगी के पैगाम को भी उजागर किया। मिस वर्ल्ड 2025 में दुनिया भर के 100 से ज़ायद ममालिक की हसीनाओं ने हिस्सा लिया, जहां वो हुस्न, ज़हानत और अपनी सकाफ़त का मुज़ाहरा किया। ये तकरीब न सिर्फ खूबसूरती का जश्न है बल्कि ख़वातीन की क़यादत और आलमी तनू की नुमाइंदगी भी करती है। तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद के गच्चीबोली इंडोर स्टेडियम में आज एक मुनफरिद और दिलकश मंजर उस वक्त देखने को मिला जब दुनिया भर से आई हुई मिस वर्ल्ड की हसीनाओं ने खूबसूरती के साथ खेलों के मैदान में भी अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। ये शानदार इवेंट मिस वर्ल्ड फाउंडेशन की जानिब से ब्यूटी विद पर्पस प्रोग्राम के तहत मुनक्किद किया गया, जिसका मकसद खूबसूरती के साथ सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी, खेलों की अहमियत और बैनुल अक़वामी हम आहंगी का पैगाम देना था। आलमी हसीनाओं ने बैडमिंटन, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल और योगा जैसे खेलों में भरपूर शिरकत की और अपनी फिटनेस, टीम स्पिरिट और नज़्म व ज़ब्त का आलमी मुजाहरा किया।
गच्चीबौली स्टेडियम खेल के रंगों और सकाफती हम आहंगी से जगमगा उठा, जहां मुख्तलिफ ममालिक की नुमाइंदा हसीनाओं ने दोस्ताना मुकाबलों में एक दूसरे से सबकत लेने की कोशिश की। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मेहमान हसीनाओं का शानदार इस्तकबाल किया गया। इवेंट के दौरान हसीनाओं ने योगा की मुश्तरका मशक भी की, जिसका मकसद आलमी सतह पर जहनी सुकून और जिस्मानी सेहत के तवाज़ुन को उजागर करना था। शहरियों ने म्यूनिसिपल उम्मीदवारों को खुश दिली से दाद दी और स्पोर्ट्स के जज्बे की ज़बरदस्त सताइश की। ज़ईफ़ अफराद जो बुढ़ापे में तनहा रहते हैं, इनके लिए तेलंगाना हुकूमत ने डे केयर सेंटर्स कायम करने का फ़ैसला किया है। महकमे बहबूदी ख़वातीन व अतफ़ाल माज़ूरीन व ममर अफराद के तहत रियासत भर में 37 मल्टी सर्विस डे केयर मराकिज़ कायम करने का फ़ैसला किया गया। वज़ीर बहबूदी ख़वातीन व अतफ़ाल सितक्का ने इस मनसूबे से मुताल्लिक़ फ़ाइल पर दस्तखत किए। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की मंजूरी के बाद इन मराकिज़ की तामीर का अमल शुरू हो जाएगा। हुकूमत ने इस स्कीम के लिए सालाना 4.61 करोड़ रुपये का बजट मख्तस किया है। बाद औक़ात बच्चे मुलाजिमत की वजह से दूर चले जाते हैं और पोते पोतियाँ स्कूलों में मसरूफ़ होते हैं। ऐसे में ममर अफराद घरों में तन्हाई का शिकार हो जाते हैं। इनकी इस तन्हाई को दूर करने और खुशी व सुकून फराहम करने की खातिर रियासती हुकूमत इन मराकिज़ का क़याम अमल में ला रही है। ये मराकिज़ अटल व्योदय योजना की रहनुमायाना ख़ुतूत के मुताबिक तामीर किए जाएंगे। महकमे इंसदाद रिश्वत सतानी ब्यूरो ACB ने इंतबा देते हुए कहा कि बाज़ अफराद ACB के अहदेदारों के नाम पर फर्जी फ़ोन कॉल्स करके सरकारी मुलाजमीन को धमका रहे हैं और इनसे रकम तलब कर रहे हैं। ब्यूरो की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया कि ACB के किसी भी अहदेदार की जानिब से कभी भी किसी सरकारी मुलाजिम को इस नोवियत का कॉल नहीं किया जाता कि अगर रकम ना दी जाए तो मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा। ब्यूरो ने अवाम और सरकारी मुलाजमीन से अपील की है कि वह इस किस्म की किसी भी कॉल पर यकीन ना करे और ना ही किसी फर्जी शख्स को रकम अदा करे। अगर किसी शहरी या मुलाजिम को ऐसी कोई कॉल मौसूल हो तो फ़ौरन ACB से राब्ता करे। राज्यसभा रुकन व ऑल इंडिया BC वेलफेयर एसोसिएशन के सदर R कृष्णया ने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस हुकूमत ने कानून हक इत्तलात कमीशन में तकर्रुरात के दौरान पिछड़े तबक़ात BC के साथ शदीद नाइंसाफ़ी की है। इस सिलसिले में उन्होंने वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी के नाम एक खुला मकतूब जारी किया। उन्होंने सख्त एतराज़ करते हुए कहा कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर समेत कमीशन में 5 अफराद की तकर्रुरी की गई, लेकिन इनमें एक भी BC तबक़े से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स शामिल नहीं है। उन्होंने मुतालबा किया कि बाकी 3 ओहदों को कम अज़ कम BC उम्मीदवारों के लिए मख्तस किया जाए। मकतूब में उन्होंने जोर देकर कहा कि कांग्रेस को BC तबक़ात के लिए अपनी नीयत और खुलूस को साबित करना चाहिए। याकुतपुरा के मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज ने सैदाबाद मंडल के कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम के तहत मंजूर शुदा चेक्स को इस्तेफादा कुनिंदगान में तकसीम किए। इस मौके पर रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज ने कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम के 73 इस्तेफादा कुनिंदगान में 73,08,468 रुपये के चेक्स हवाले किए। इस मौके पर संतोष नगर कॉरपोरेटर मुजफ्फर हुसैन, रेन बाजार कॉरपोरेटर वासिउद्दीन, कुरमागुड़ा नुमाइंदा कॉरपोरेटर शिफात अली, मजलिसी प्राइमरी यूनिट के अरकान और दिगर मौजूद थे। इस मौके पर रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पीर को चार मीनार मंडल के इस्तेफादा कुनिंदगान में कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक के तहत मंजूर शुदा चेक्स तकसीम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सदर मजलिस बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी और फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी की क़यादत में मजलिस पार्टी मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों के जरिए अवाम को फ़ायदा पहुँचाने के लिए वक़्फ़ है।
پارٹی کی نمائندگی کی وجہ سے پچھلی حکومت کے دوران شادی مبارک جیسی اسکیمیں متعارف کروائی گئی جو اہل استفادہ کنندگان کو مالی امداد فراہم کرتی ہے۔ سعید آباد منڈل یاقوتپورہ اسمبلی کانسٹیٹنسی کے جملہ 73 شادی مبارک چیک ڈسٹریبیوشن کیے گئے ہیں، جس میں میرے ساتھ میں سنتوش نگر کارپوریٹر جناب مظفر صاحب، رین بازار کارپوریٹر واصف الدین صاحب، کرما گوڑا نمائندہ کارپوریٹر شفاعت صاحب، تحصیلدار سعید آباد منڈل اور تحصیلدار کے ساتھ ساتھ ان کی ٹیم اور مجلس اتحاد المسلمین کے دیگر صدر معتمدین، جس کی لاگت 73 چیکس کی ہو رہی 73,08,468 یعنی 73 چیک ہے، 73,08,468 روپے کے آج چیک ڈسٹریبیوشن کیے گئے ہیں سعید آباد منڈل کے۔ انشاءاللہ پیر کے دن چار مینار منڈل کے چیک ڈسٹریبیوشن کیے جائیں گے۔ نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی خاص نگرانی میں اور حبیب ملت جناب اکبر الدین اویسی صاحب کی قیادت کے اندر مجلس اتحاد المسلمین حکومت کے جو بھی اسکیمز آتے ہیں اس کو آگے بڑھ کے نہ صرف مجلس کے ذمہ دار بلکہ مجلس کے چاہنے والے آگے بڑھ کے وہ اسکیم کو عوام تک پہنچانے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ اسی کے سلسلے میں کنٹینیوس ہم نے جیسے چیکس ضلع مستقر جنگاؤں میں کل شام سے ریاستی سطح کے نیٹ بال ٹورنامنٹ کا آغاز عمل میں آیا، جس کا افتتاح مقامی رکن اسمبلی ڈاکٹر پی راجیشور ریڈی نے انجام دیا۔ ٹورنامنٹ میں ریاست کے تمام اضلاع سے 40 سے زائد ٹیم شرکت کر رہی ہے۔ اس موقع پر افتتاحی تقریب کو مخاطب کرتے ہوئے ڈاکٹر راجیشور ریڈی رکن اسمبلی جنگاؤں نے کہا کہ وہ جنگاؤں میں کھیل کود کو فروغ، کھلاڑیوں کی بنیادی ضروریات کی تکمیل کے لیے سازگار فراہم کر رہے ہیں اور کھلاڑیوں کو عملی مشق فراہم کرنے کے علاوہ صلاحیتوں کو ابھارنے کے بھرپور مواقع پیش کریں گے۔ انہوں نے کھلاڑیوں کو کھیل کی عارضی شکست اور فتح کو اپنی صلاحیتوں کو ابھارنے کا واحد ذریعہ تصور کرنے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ صحت مند رہنے اور تندرستی کے لیے کھیل کو مقابلوں میں حصہ لینا ناگزیر ہے۔ ضلع سدی پیٹ کے گجویل اسمبلی حلقے، جس کی نمائندگی سابقہ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کرتے ہیں، حلقے کے عوام کے مختلف علاج معالجے کے لیے ضروری مالی امداد فراہم کرنے کی غرض سے مسٹر وی پرتاپ ریڈی سابقہ صدر نشین جنگلات کارپوریشن کے توسط سے 47 افراد نے 47 لاکھ روپے کی مالی امداد فراہم کرنے حکومت سے درخواست پیش کی تھی، تاہم حکومت نے محض 60,000 روپے منظور کرتے ہوئے چیک جاری کیے۔ اس ضمن میں آج کیمپ دفتر میں مسٹر وی پرتاپ ریڈی نے سابقہ صدر بلدیہ NC راجہ مولی گپتا، صدر ٹاؤن کمیٹی محمد نواز میرا، چیئرمین جامعۃ الحق محمد شیخ حیدر پٹیل اور دوسرے BRS قائدین کی موجودگی میں درخواست گزاروں میں تقسیم کیے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ درخواست گزاروں کو مالی امداد فراہم کرنا حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے، تاہم ریاستی حکومت اپنی ذمہ داری سے راہ فرار اختیار کرتے ہوئے محض 60,000 روپے منظور کیے، جو کہ ضرورت مندوں کی ضروریات کی تکمیل کے لیے ناکافی ہے۔ انہوں نے مالی امداد میں کٹوتی کی سخت الفاظ میں مذمت کی۔ اس موقع پر گجول منڈل BRS پارٹی صدر مادھو لتا رمیش گوڑ، سابقہ کونسلر اور دیگر قائدین موجود تھے۔ مس ورلڈ مقابلے میں حصہ لینے کے لیے حیدرآباد میں موجود حسینائیں اتوار کی شام ٹینک بانڈ پر سنڈے فنڈے کے رنگا رنگ میلے میں حصہ لیں گی۔ یہ میلہ حیدرآباد میٹروپولیٹن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جانب سے منعقد کیا جا رہا ہے تاکہ شہریوں کو تفریح، ثقافت اور موسیقی کا حسین امتزاج فراہم کیا جا سکے۔ میلے میں موسیقی، رقص، کھانے پینے کے اسٹالز اور دیگر تفریحی سرگرمیاں شامل ہوگی جو شہریوں اور سیاحوں کو ملہوس کرے گی۔
मिस वर्ल्ड की हसीनाओं की मौजूदगी इस मेले की रौनक को दोबारा करेगी और आलमी सतह पर तेलंगाना की सखाफत और मेहमान नवाजी को उजागर करेगी। ये प्रोग्राम न सिर्फ मुकामी शहरियों के लिए तफरीह का जरिया है बल्कि आलमी मेहमानों के लिए भी तेलंगाना की सखाफती झलक पेश करता है। संडे फंडे का ये मेला रियासत की सयाहत को फ़रोग़ देने और आलमी सतह पर इसकी शनाख्त बनाने में अहम किरदार अदा करेगा। तेलंगाना आरटीसी ने अवाम ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल की हौसला अफजाई के लिए एक मुनफरिद और अनोखी तशहीरी मुहिम का आगाज़ किया। इस मुहिम के तहत मुसाफिरों को गुलाब के फूल पेश किए जा रहे हैं और इनसे गुजारिश की जा रही है कि वो सफ़र के लिए आरटीसी बसों को तरजीह दें। कंडक्टर्स ने बस में सवार होने वाले मुसाफिरों को गुलाब पेश करते हुए उन्हें याद दिलाया कि ज़ाती गाड़ियों के इस्तेमाल से न सिर्फ सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ता है बल्कि हादसात के इम्कानात भी ज़्यादा होते हैं। इसके बरक्स आरटीसी बसेस महफूज, आरामदाह, सस्ती और माहौल दोस्त सफरी सहूलत फ्राहम करती है। इस मौके पर कंडक्टर ने यह भी निशानदही की कि अवामी ट्रांसपोर्ट के फ़रोग़ से न सिर्फ ईंधन की बचत होती है बल्कि फ़िज़ाई आलूदगी में भी कमी आती है जो माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए निहायती अहम है। वनस्थलीपुरम में ये मुहिम न सिर्फ मुसाफिरों को मुतासिर कर रही है बल्कि सोशल मीडिया पर भी इस इक़दाम की सताइश की जा रही है। कई मुसाफिरों ने फूलों के ज़रिए दी गई इस दावत को खुशाइंद करार दिया और आरटीसी की कोशिशों की सताइश की। कुछ मुसाफिरों ने हैरत के साथ कहा कि इक़दाम सिर्फ एक रस्मी अपील नहीं बल्कि एक जज्बाती ताल्लुक़ पैदा करने की कोशिश है जो अवाम और ट्रांसपोर्ट सिस्टम के दरमियान एतमाद को मजबूत करता है। आरटीसी हुकाम ने उम्मीद ज़ाहिर की है कि इस मुहिम से न सिर्फ मुसाफिरों की तादाद में इजाफा होगा बल्कि अवाम में इज्तिमाई तौर पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल का शौर भी बेदार होगा। तेलंगाना के संगारेड्डी के फल तहकीकी मरकज़ फ्रूट रिसर्च स्टेशन में 2 रोज़ा आमों की नुमाइश हुई जिसमें मरकज़ में उगाए गए 270 अक़साम के आमों की नुमाइश के लिए रखे गए। नुमाइश के दौरान ज़राई माहिरीन और साइंसदानों ने किसानों को आम की काश्त, देखभाल, जदीद तरीक़े ज़राअत और मुख्तलिफ़ अक़साम के फ़वाइद के बारे में तफ़सीलात फ़राहम की। इस मौके पर AICRP प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर प्रकाश पाटिल ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर शिरकत की और आम की काश्त से मुतालिक तकनीकी पहलुओं पर किसानों को बाज़ाब्ता तरबियत दी। किसानों ने इस तरह की मालूमाती नुमाइश पर मसर्रत का इजहार करते हुए इदारे की कोशिशों की सताइश की। तेलंगाना के निज़ामाबाद, जगत्याल, राजन्ना सिरसिल्ला, जयशंकर, भोपालपल्ली, मलक, भद्राद्री, कोत्तागुडम के बाज़ मुकामात पर आइंदा 24 घंटों के दौरान 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से तूफ़ानी हवाएं चलेगी और बारिश होगी। महकमे मौसमियात ने यह बात बताई। अपनी रिपोर्ट में उसने कहा कि आइंदा 5 दिनों के दौरान रियासत के मुख्तलिफ मुकामात पर 50 किलोमीटर की रफ्तार से तूफ़ानी हवाएं चलेगी। आज़म तरी दर्ज हरारत इम्कान है कि आइंदा 3 दिनों के दौरान मामूल से 3 से 5 डिग्री कम रहेगा। ज़िला आदिलाबाद में आज़म तरीन दर्ज हरारत 41.8 डिग्री दर्ज किया गया। शादी से एक दिन पहले दुल्हन को धोखा देते हुए दूल्हा दूसरी लड़की के साथ फरार हो गया। यह अनोखा वाक़या तेलंगाना के करीमनगर ज़िले के रंगापुर गांव में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक रंगापुर से ताल्लुक़ रखने वाले मधुकर रेड्डी हैदराबाद में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम करता है। इसकी शादी इसी मंडल की एक लड़की से तय पाई थी और गुज़िश्ता रोज़ शादी की तकरीब एक शादी खाने में अंजाम पाने वाली थी, लेकिन हैरत कुन तौर पर मधुकर रेड्डी ने कल ही एक और लड़की से शादी कर ली और इसकी शादी की तस्वीर दुल्हन के घर वालों को इरसाल कर दी। ये खबर मिलते ही दुल्हन के अरकान खानदान इंसाफ के लिए पुलिस स्टेशन पहुंच गए। इनका इल्ज़ाम है कि दुल्हा और इसके वालिदैन मकान को ताला लगाकर फरार हो गए हैं।
मुतासिरा खानदान ने पुलिस से मुतालबा किया कि उन्हें इंसाफ फराहम किया जाए। हैदराबाद के चादरघाट इलाके में जुमा की शब नामालूम चोरों ने एक ताजिर के मकान में घुसकर सोना और चांदी और नकदी रकम लूट ली। मुतासिरा ताजिर हाफिजुद्दीन अपनी अहलिया के साथ रिश्तेदारों से मुलाकात के लिए गए हुए थे, जबकि इनके बच्चे घर में मौजूद थे। चोरों ने मौका गनीमत जानकर घर में दाखिल होकर पहले बच्चों के कमरे को बाहर से बंद कर दिया और फिर बेडरूम में मौजूद कीमती अशिया की चोरी कर ली। चादरघाट पुलिस के मुताबिक चोरों ने न सिर्फ जेवरात और नकद की चोरी की, बल्कि फ्रिज में रखे फल खाए और किचन से खाना भी खाया। हाफिजुद्दीन जब रात देर गए वापस घर आए तो उन्होंने देखा कि घर में अशिया बिखरी पड़ी हुई थी और बच्चों के कमरे को खुफल था। उन्होंने फौरन पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर क्लोज टीम और ट्रैकर डॉग को तलब किया। ट्रैकर डॉग की मदद से मलकपेट रेलवे स्टेशन तक सुराग मिला, ताहम बादिजाए कुत्ते रुक गए। पुलिस ने जाए वारदात से फिंगरप्रिंट्स हासिल करके तहकीकात शुरू कर दी। इस सिलसिले में मामला दर्ज कर लिया गया। यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.